اب اس کو اپنی بیٹی کی طرح ماننا ہے، اس کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ جیسے اپنی بیٹی گھر میں ہوتی ہے، اس کو بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بہت ساری غلطیاں گھر میں ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کی بچی بن گئی، اس سے بھی غلطی ہوگی۔ یہ کوئی ملک نہیں ہے آسمان سے آئی ہوئی ہے، یہ آسمان سے نہیں ہے، یہ بھی زمین سے۔ جس سے طرح آپ کی بیٹی سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ صاف اور سچا کلام کو، یہ آپ نے مانا اپنی بیٹی ہے تو اس کو بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ جب آپ یہ کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، آپ کے اعمال کو اللہ سدھارے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کرے گا، اور اطاعت جس نے کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارے جو بھائی جانے، جو ہمارے لڑکے ہیں، عاطف خالد صاحب، ان سے بہت سے حقوق کی مانگ کر رہا ہے قرآن اور حدیث۔ حقوقوں میں یہ ہے کہ یہ آج کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا آپ کی ذمہ داری، اس کا کپڑا آپ کی ذمہ داری، یہ بیمار ہے آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسے احسن طریقے سے کھلانا ہے، پلانا ہے، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے اپنے سے زیادہ، اس کی بیماری کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ کبھی بیمار پڑ جائے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو خوش رکھنا ہے جس طرح اپنی بیویوں کو خوش رکھتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی گھر والیوں کو کام میں مدد دے رہے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام میں، چاہے وہ روٹی بنانا ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹی بناتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ماؤں بہنوں کو سونپ دی گئی ہے، چاہے اس کو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو بنانا ہی بنانا ہے، چاہے وہ بیمار ہے اس کو بنانا ہی بنانا ہے، اس کو چاہے بچے کو کبھی بھوک لگتی ہے وہ بچے کے ساتھ لگتی ہے، لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ بولتا ہے کہ یہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے بھی ذمہ داری بنتے ہے، کبھی آپ بھی اس کے لیے چائے کا ایک کپ بنا کے دے دو، یہ آپ کی ذمہ داری۔ پھر دیکھو آپ کے گھر میں رونقیں آئے گی، آپ کے گھر میں بہاریں آئے گی، آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ یہ تب ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھو گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے۔ جب حقوق ضائع کرو گے پھر گھروں میں بہار نہیں آئے گی۔ اس کو خوش رکھنا، اس کے کام میں اس کو ہیلپ کرنا ہے، یعنی مدد کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، سنت مبارک ہے۔ اور اس لڑکی سے بھی کہا گیا، ہماری دلہن سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو یہ شوہر ہے اس کی اطاعت کرنا۔ کتنی اطاعت؟ ہر معاملے میں اطاعت۔ اگر یہ کہے کہ مائکے نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، خود ہی نہیں چلے جانا ہے مائکے، اسے پوچھے بغیر۔ لیکن مرد سے کہا گیا جب یہ کہے مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، تو اسے چھوڑنا، اسے پکڑ کے رکھنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہے، ان کے پاس جانے دینا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اگر گئی تو نافرمان لکھے گا اللہ۔ اتنا ہی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہی آپ کا جنت ہے، یہی آپ کا جہنم ہے، یہی دوزخ ہے، یہی جنت ہے۔ کیسے؟ بیان فرمایا کہ جنت کیسے؟ اس کی اطاعت کر کے آپ جنت جاؤ گی، اس کی نافرمانی کر کے جہنم جاؤ گی۔ اگر آپ نے نافرمانی کی، جب بھی بلائے اپنی طرف، انکار نہیں کرنا۔ اگر آپ نے انکار کر دیا، جب تک آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تب تک آپ کے لیے آسمان سے لعنت بھیجی جا رہی ہے، تب تک آپ کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ اگر اس حالت میں انتقال ہوا، اگر اس حالت میں آپ مر گئی کہ آپ کا شوہر، آپ کا خاوند آپ سے ناراض ہے، آپ مر گئی، شوہر ناراض ہے، آپ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی، جنت کی خوشبو آپ پہ حرام ہے۔ اگر آپ اس حالت میں مر گئی کہ آپ کا دلہا، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، جتنی بھی چلے اپنے شوہر کو کیا راضی کرنا ہے، آپ کے شوہر کو راضی کرنا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی، سجدے کی اجازت کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، کوئی
کوئی بھی درگاہ ہو، کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی مینار ہو، سجدے کی اجازت کہیں پہ نہیں ہے، مانگنے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں اس دلہن کو کہتا یا گھر والی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا حق بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دونوں کا اپنے حقوق سمجھنے ہیں۔ جب حقوق ادا ہو جائے گے دونوں کے، تبھی یہ جو جب یہ خرچات جو ہوتے ہیں نکاح میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تبھی سب کامیاب ہے جب یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گے۔ دوستو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل رمیز سلفی کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ڈیلی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے۔ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ گواندی جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواندی جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی،
तुझे तेरे आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सय्यार। सारी तारीफ़ है अल्लाह के लिए। दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम्द सना और दुरूद सलाम के बाद आप सब जानते हैं कि हमें एक अजीम मजलिस में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, जो मजलिस बड़ी ही कदर मंजिलत की हामिल है, जो मजलिस बाइस सवाब है, जो मजलिस एक अजीम मजलिस है जिसके मुतल्लक कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इदा तज़व्वजुल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ अद्दीन। जब अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी निकाह के बंधन में बंध जाती हैं, यानी जब इनका ईजाब कबूल हो जाता है, तो ये अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें इस मजलिस का वो जो मुकाम है वो हमें समझ ही नहीं आया। हमने दुनियाई मजलिस को समझ लिया है। वजह यह है कि हमें लगता है शायद हमें दुनिया जो है वफा करने वाली है। इस दुनिया ने न किसी का वफा किया है न किसी का करेगी। जो भी इस दुनिया में आया है उसे बहरहाल इस दुनिया से निकलना है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म से हो। इस चीज़ पे हम सभी मानते हैं कि मरना तो है। ये तो अलग चीज़ है कि इख्तलाफ इस बात पे है दोबारा उठना है कि नहीं उठना है, इस चीज़ पे इख्तलाफ है, लेकिन इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है, मरना तो है। इसको सभी मानते हैं, चाहे वो अपने आप को एथिस्ट क्यों ना माने, चाहे वो अपने आप को हिंदू क्यों ना माने, चाहे वो अपने आप को किसी भी धर्म से जोड़ ले, लेकिन सभी धर्म इस चीज़ को मान लेते हैं कि मरना तो है। इख्तलाफ इस चीज़ में है कि दोबारा जिंदा होने पे, इस पे इख्तलाफ है, लेकिन मरना, मुसलमान इस चीज़ को मान रहा है कि हमें दोबारा उठना है और एक एक लम्हे का जवाब देना है। एक एक लम्हे से पूछा जाएगा, आपने एक एक लम्हा किधर ज़ाया किया? आपने अपने बेटी की शादी पे इस्लाम को याद रखा कि नहीं रखा? आपने अपनी बेटी की शादी पे इस्लाम को याद रखा कि नहीं रखा? कि आपको बस तभी याद आया इस्लाम जब निकाह पढ़ाने थे, तभी वो आयत पढ़ लिए और निकाह हो गया? अगर इतना ही फर्क है तो फिर क्या रहा? फिर वो मंदिर में चक्कर लगा के अपना निकाह पूरा कर रहे और मुसलमान निकाह पढ़ा के, बाकी जो भी है वो तो हम एक दूसरे के देख रेख में कर रहे, वो भी ऐसा ही कर रहे तो हम भी वैसा ही करें। इसका जवाब देना है इंदल्लाह, हमें खड़ा होना है अल्लाह के। हाँ, अगर यकीन है इस पे कि हमें खड़ा होना है, फिर हमें जरूर जवाब देना है। बहरहाल इसलिए हमारा रब हमसे बार बार यही कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ये जो निकाह पढ़ा रहे हो, चाहे आप दूल्हे की तरफ से हो दुल्हन की तरफ से, आप दोनों के लिए ये आया बयान किया जा रहा है कुरान मजीद में। ईमान लाने वालों, चाहे आप इस साइड से हो इस साइड से हो, दोनों साइड के मुसलमानों से पूछा जा रहा है, इत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, मुझसे डरो। जो मुझसे नहीं डरा उसको पकड़ हो गई। हाँ, डरना तो पड़ेगा, और जो नहीं डरता है उसे फिर डरा रहा है, फिर बार बार वो डर रहा है, और वो डर ऐसा है जो फिर फिरौन को भी हो गया, जो फिर नमरूद को भी हो गया, जो फिर अबू जहल को भी हो गया। अगर कोई डरता नहीं उसे फिर अल्लाह डराता है, इसलिए खुद ही डरना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो जितना उसे डरने का हक है। वला तुमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना नहीं, मरना तो सबको है, लेकिन अल्लाह कह रहा है मरना नहीं, लेकिन जब मरोगे तो मुसलमान मरना, आखिरी लम्हात पे मुसलमान मरना। आपको कहां मालूम है कि मुझे कब मौत आएगी? अगर आपको गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो आखिरी लम्हात किस हालत में गए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, वला तुमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना नहीं, लेकिन जब मरोगे तो मुसलमान मरना। अल्लाह के हाँ इस काबिल जाना कि आप चेहरा दिखाने के लायक रहो अल्लाह के दरबार। आपको कल
मौत से मुलाकात करनी है, ये सबको करनी है। आपको कब्र देखनी है, आपको महशर देखना है, वहां के लिए कोई तैयारी कर रखी है कि ऐसे ही जिंदगी गुजार दी? एक एक लम्हे का जवाब देना पड़ेगा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। दूसरी आयत, या अय्युहन्नास, कायनात के अंदर रहने वाले तमाम लोगों, मुझसे डरो। मैंने आपको एक ही आदमी से पैदा किया है, वो आदम अला नबीना अलैहि सलातु, उससे उसकी घरवाली हवा अलैहि सलातु व सलाम। फिर मैंने सारी ज़ुरियत जो बनाई, किसी को मैंने बनाया मीर, किसी को डार, हाँ, किसी को अंदराबी, किसी को सईद, किसी को कोई और, किसी को कोई और, अलग अलग जात से। यानी आपके यहाँ भोपाल में मलिक होंगे या दूसरी दूसरी जातें होगी। ये जातें क्यों बनाई अल्लाह ने? ये इसलिए बनाई कि आप एक दूसरे को पहचानो, पहचान हो जाए, फॉर रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, एक दूसरे को पहचान पाओ, वरना पहचान नहीं पाते। अगर मैंने जात पात नहीं बनाए होते, कैसे पहचान लेते? कश्मीर में आए, कश्मीर में एक नाम के हजारों आदमी हैं, आपको नजर ही नहीं आएगा मुझे कहां जाना है। लेकिन जब आप मालूम करोगे ये गुलाम नबी तू है, ये कोई और जात है, तो भी आपको इस घराने का पता मिलेगा, वरना नहीं। ये इसलिए बनाए। लेकिन आपने ये स्टैंडर्ड बनाया रिश्तों के लिए, आपने मियार बनाया रिश्तों के लिए। रिश्तों के लिए ये मियार नहीं था जात पात। आप ये ना समझे कि मैं सुपीरियर हूं और कोई इंफीरियर है, मैं हाई कास्ट का हूं और ये लो कास्ट का है। इस बुनियाद पे नहीं, इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कास्टिज्म को, ये इसलिए कि आप पहचान सको मेरे यहां, मेरे दरबार में मुकाम, मर्तब, बुलंदी उसको है जिसके यहां तकवा हो, जो अल्लाह से डरता हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब आपने कुरान में बयान फरमाया कि मेरे नजदीक उसको मुकाम है, उसको मर्तबा, उसको बुलंदी है जिसके यहां तकवा हो। तकवा क्या होता है? अल्लाह से डरना। लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि आप परहेजगार बन जाओ। जो ये कुर्बानी है, जो ये हम दुनिया में रोजा रख रहे हैं रमजान के महीने में, असल सबका यही चीज है कि तकवा इख्तियार करो, रब से डरो। इस चीज को मानो कि मुझे अल्लाह के यहां खड़ा होना है और मुझे जवाब देना है। जब एक बच्चे को सुबह घर से 100 रुपया मिलता है ना कॉलेज जाने के लिए, अगर उसके पास तकवा होगा, ये खौफ होगा कि मुझे बाप से हिसाब देना है, तो 100 रुपया इधर उधर नहीं करेगा। यही मिसाल है, जिसको ये होगा मुझे अल्लाह के यहां खड़ा होना है, वो अपनी जिंदगी जाया नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के रास्ते पे चला के कामयाबी ढूंढेगा। वो कामयाबी ऐसे नहीं ढूंढेगा जैसे हम ढूंढ रहे, जिस तरह हम अपनी कामयाबी तलाश कर रहे। ये कामयाबी तलाश करने का तरीका नहीं है। कामयाबी उसी चीज में है, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह की इताअत की, जिसने नबी की इताअत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी को असली कामयाबी मिली, उसी को असली कामयाबी मिली, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वही कामयाब होगा। लेकिन आज देखो, हमने कभी किसी मुकाम पे इताअत की अल्लाह की? हमने इताअत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मामले में? न हमने खुशी में इताअत की, न हमने गम में इताअत की, न हमने उठने में इताअत की, न बैठने में इताअत की, न खाने में इताअत की, न पीने में इताअत की। अगर किया तो हर मामले में कुरान और हदीस से दूर रहे और गैरों के तरीकों पे अपनी शादियां की, गैरों के तरीके पे अपनी जिंदगियां गुजारी और मरते मरते भी गैरों के तरीके पे मरे। और इसके बाद हमें तलाश रही कि हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत इतनी सस्ता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मनसब को समझो, आप मुसलमान हो और मुसलमान ही इस दुनिया से रुखसत होना है, तभी कामयाबी है। तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, इत्तकुल्लाह, मुझे डरो, कूलू कौलन सदीदा, साफ अल्फाज में, दबी अल्फाज में नहीं, साफ अल्फाज में सच कहा करो। किसी भी हालत में सच बोला करो, इसी में कामयाबी है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने इस बच्ची को इस इलाके से लिया,
आप भोपाल में हो, आप इस वक्त किधर रहते हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप असल में भोपाल के हो, ये असल में कश्मीर की लड़की है। इतनी दूर शादी, अल्लाह ये पूछ रहा है कि आप डरो और साफ कलाम करो, सच्चा कलाम करो। यानी आपने बोला ये कि आज के बाद ये हमारी बेटी हुई, अब इसको अपनी बेटी की तरह मानना है, इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना है। जैसे अपनी बेटी घर में होती है, उसको भी बहुत सारी गलतियां होती है, घर में होती है कि नहीं होती है? बहुत सारी गलतियां घर में होती है। ये भी आपकी बच्ची बन गई, इससे भी गलती होगी। ये कोई मलक नहीं है आसमान से आई हुई है, हम ये आसमान से नहीं है, ये भी जमीन से। जिससे तरह आपकी बेटी से गलती हो सकती है, इससे भी गलती हो सकती है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि साफ और सच्चा कलाम को, या आपने माना अपनी बेटी है तो इसको बेटी की तरह ट्रीट करना है। जब आप ये करोगे, युस्लिलुकुम अमालुकुम, आपके अमाल को अल्लाह सुधारेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, गुनाहों को माफ करेगा। और इताअत जिसने की अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कामयाब हो गया। और हमारे जो भाई जाने, जो हमारे लड़के हैं आतिफ खालिद साहब, इनसे बहुत से हुकूक की मांग कर रहा है कुरान और हदीस। हुकूकों में यह है कि ये आज के बाद आपकी जिम्मेदारी है, इसका खाना इसका पीना आपकी जिम्मेदारी, इसका कपड़ा आपकी जिम्मेदारी, ये बीमार है आपकी जिम्मेदारी, हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है। इसे ऐसन तरीके से खिलाना है, पिलाना है, इसके कपड़ों का ख्याल रखना है अपने से ज्यादा, इसकी बीमारी का ख्याल रखना है। अगर ये कभी बीमार पड़ जाए तो इसका ख्याल रखना है, और इसको खुश रखना है जिस तरह अपनी बीबियों को खुश रखता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने घरवालियों को काम में मदद दे रहे थे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर काम में। चाहे वो रोटी बनाना हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोटी बनाते थे। ये नहीं कि ये जिम्मेदारी हमारी माओं बहनों को सौंप दी गई है, हाँ चाहे उसको कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, इसको बनाना ही बनाना है। चाहे वो बीमार है, उसको बनाना ही बनाना है। उसको चाहे बच्चे को कभी भूख लगती है, वो बच्चे के साथ लगती है, लेकिन इसका जो शौहर है वो बोलता है कि ये इसी की जिम्मेदारी है। नहीं है, इसकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके भी जिम्मेदारी बनते है। कभी आप भी उसके लिए चाय का एक कप बना के दे दो, ये आपकी जिम्मेदारी। फिर देखो आपके घर में रौनकें आएगी, आपके घर में बहारें आएगी, आपके घर में सुकून आएगा। ये तब है जब आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के हुकूक अदा करोगे। जब हुकूक जाया करोगे फिर घरों में बहार नहीं आएगी। इसको खुश रखना, इसके काम में इसको हेल्प करना है, यानी मदद करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक है, सुन्नत मुबारक है। और इस लड़की से भी कहा गया, हमारी दुल्हन से भी कहा गया है कि आप अपनी जो ये शौहर है इसकी इताअत करना। कितनी इताअत? हर मामले में इताअत। अगर ये कहे कि मायके नहीं जाना है तो नहीं जाना है, खुद ही नहीं चले जाना है मायके, इसे पूछे बगैर। लेकिन मर्द से कहा गया जब ये कहे मुझे अपने बाप के पास जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, तो इसे छोड़ना, इसे पकड़ के रखना नहीं है, इसको छोड़ना है, उनके पास जाने देना है। लेकिन इसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। अगर गई तो नाफरमान लिखेगा अल्लाह। इतना ही नहीं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि यही आपका जन्नत है, यही आपका जहन्नम है, यही दोज़ख है, यही जन्नत है। कैसे? बयान फरमाया कि जन्नत कैसे है, इसकी इताअत करके आप जन्नत जाओगी, इसकी नाफरमानी करके जहन्नम जाओगी। अगर आपने नाफरमानी की, जब भी बुलाए अपनी तरफ, इनकार नहीं करना। अगर आपने इनकार कर दिया, जब तक आपका शौहर आपसे नाराज है तब तक आपके लिए आसमान से लानत भेजी जा रही है, तब तक आपके ऊपर लानत भेजी जा रही है। अगर इस हालत में इंतकाल हुआ, अगर इस हालत में आप मर गई कि आपका शौहर, आपका खामद आपसे नाराज है, आप मर गई, शौहर नाराज है, आपको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती। जन्नत की खुशबू आप पे हराम है। अगर आप इस हालत में मर गई कि आपका दुल्हा, आपका शौहर आपसे नाराज है, जितनी भी चले अपने शौहर को क्या राजी करना है, आपके शौहर को राजी करना है, तभी कामयाबी है। और अगर सजदे की इजाजत होती, सजदे की इजाजत कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं, कोई
कोई भी दरगाह हो, कोई भी मेंबर हो, कोई भी मीनार हो, सजदे की इजाजत कहीं पे नहीं है, मांगने की इजाजत कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर सजदे की इजाजत होती तो मैं इस दुल्हन को कहता या घरवाली को कहता कि अपने शौहर को सजदा करे। इतना हक बयान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोनों का अपने हुकूक समझने हैं। जब हुकूक अदा हो जाएंगे दोनों के, तभी ये जब ये खर्चा जो होते हैं निकाह में 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख, इससे कुछ नहीं होता है। ये तभी सब कामयाब है जब ये एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे। यही है इस जो हमने बयान किया, इसका जो लुबी लुबाब है, असल जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि एक दूसरे के हुकूक अदा करो और अपनी शादी इस्लामी तरीके पे करो, तभी कामयाबी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल है वो है तारिफ रऊफ, पेरेंटेज है खालिद रऊफ, एड्रेस सेम ही है। और जो हमारी दुल्हन है मन को जो हमारी दुल्हन है उसका नाम है हाविया नबी, पेरेंटेज गुलाम नबी अत्तू, और एड्रेस है फ्रेंड्स एनक्लेव हुमामा न्यू एयरपोर्ट रोड श्रीनगर। और इनके जो शाहिद हैं वो मुश्ताक अहमद यत्तू, लेट गुलाम अहमद यत्तू, एड्रेस बादीपोरा चाडोरा बडगाम। और जो दूसरे शाहिद हैं उनके मोहम्मद इब्राहिम डार, सन ऑफ लेट गुलाम अब्दुल गनी डार, एड्रेस है शेखपुरा बडगाम। ये यहाँ मौजूद हैं। जो हमने शाहिद गिने हैं ना वो मौजूद हैं इस मजलिस में, यानी शारिक रऊफ, तारिफ रऊफ, ये दोनों मौजूद हैं। और मुश्ताक अहमद यत्तू और दूसरे हैं मोहम्मद इब्राहिम डार। ठीक, हमारी दुल्हन यहाँ पे मौजूद है और हमारे जो दूल्हा है वो भी मौजूद हैं।